Okay, guys, before starting the class, let's take a question which Ritvik has. Yeah, Ritvik, go ahead, please. The sum of three consecutive multiples of 7 is एक बार बता, तू 63. कुछ खा रहा है क्या अभी? No, sir. Okay. Sum of three consecutive multiples बोला है ना, multiples. Yes, sir. Multiples of Multiples 7 of seven. हाँ, is 63. is 63. All right. तो ये वैलिड है या क्वेश्चन इनवैलिड है? देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ना, हम फाइंड आउट कर लेते हैं अभी. डाउट एंड दिस इज कम फ्रॉम ऋत्विक. V for Victor वाला ऋत्विक. Okay. So let the lowest multiple is equal to x. अगर लोएस्ट मल्टीपल x है तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 2x होगा. सॉरी, x प्लस 7 होगा. x प्लस 7, क्योंकि x ये 7 का मल्टीपल है कोई. तो सपोज करो 14 एक मल्टीपल है 7 का. नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 14 प्लस 7 यानी 21. नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28. ऋत्विक, ओके सो फार? Yes, sir. Okay. So x plus 7 and x plus 7 plus 7. Jia, okay? Arshia, okay? Arnav, okay? Yes, Abhinav? sir. Okay. ये क्वेश्चन है, दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल, आई थिंक एनसीईआरटी या कहीं ना कहीं चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Yes, sir. नो, इन तीनों को ऐड कर दिया. कह रहा सम, सम कह रहा सम. क्यों उमर? सम का मतलब क्या होता है? एडिशन ना. Yes, उमर, sir. सम का मतलब एडिशन ही होता है. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू 63. अब सॉल्व कर लो. 1x 2x एंड 3x, 3x है टोटल मिला के. 3x प्लस 172737 प्लस 21 is equal to 63. 3x is equal to 63 minus 21 is equal to 42. X is equal to 42 upon 3. So that is to say 3 1 ja 3 and 3 2 ja, एक minute, 3 1 ja 3 and 3 4 ja 7. What is that number? What is that multiple? So all right, so the number is 14. Ritvik, happy? Okay, sir. Yes, sir. क्वेश्चन भी वैलिड है और सॉल्यूशन भी हमने कर लिया. I think we have a new student today. I didn't get your name when your mother spoke to me. Can you just tell your name and school to me? I'm talking to the new student since I don't know your name. Otherwise, I would have called you by name. Just tell me your name and school, please. दादा, आपने ज्वाइन किया है बैराम चक्रवर्ती के नाम से. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जस्ट टेल मी योर नेम एंड स्कूल. हाँ जी. Don't feel shy. Don't feel shy. This is a very, very, I mean, there's nothing formal here. We all have a very informal and friendly class. भाई कौन है बैराम चक्रवर्ती? अच्छा, जब मैं आर्मी में था. अच्छा, by the way guys, wish you a very, very happy Vijay Divas. Today we have the anniversary of Kargil victory. Today is the day Yes, that we sir. had decided with Kargil victory, and we had a huge. I think I should show you that. You would like to see that? मेरा कोर्स स्टूडेंट है, वो ब्रिगेड कमांडर है. Yes, yes, मैंने sir. आज ही Yes, sir. भेजा है. You like to see that? Okay. उसने ग्रुप में डाला तो मैं तो दिखा रहा था. It will take us 5 minutes, but I think it will be worth it. Just give me a moment. Yes, दादा कहाँ है? विजय दिवस. Okay, देखते हैं. चलो, I'll share this with you. Let's see this. All right, share. Okay. Right, guys, I'm playing this, and let's see this.
आ रहा है? Everybody can see? Yes, sir. Okay, please enjoy and get motivated by this. यहाँ कदम जरा हौले रखना, यहाँ लाल मेरे कुछ सोए हैं, दाग मेरे आंचल के जिन्होंने खून से अपने धोए हैं। All that area. This guy has got Paramvir Chakra. ये परमवीर चक्र योगेंद्र यादव। रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे बहादुर सेना है उनकी रक्षा करें और उनके परिवार की रक्षा करें। और The first thought that comes to my mind is कि when you go home, tell them of us to give out for your tomorrow. And my personal belief है that every तो मुझे सिर्फ उनके 3 सैनिक ही दिखाई दिए थे। उसके बाद हमने वहीं से संकट को तोड़ के सभी के पद समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। हम आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। This has happened today. Today. पर ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। Okay, and when if you get a chance to go and see this war memorial there at Kargil has got a big war memorial, and I'm very proud to say that my regiment's name is the first one that you'll see. Just give me a moment. Yes. Yeah, okay, I'll just show you the Kargil since it is worth it. जनरली हम क्लास में सब नहीं करते डिस्कस, लेकिन आज वो स्पेशल ओकेजन है और हम मौके पे 2 मिनट 5 मिनट बात कर सकते हैं इस बारे में। ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। सी दीज आर द इमेजेस ऑफ द कारगिल वॉर मेमोरियल। सी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये वॉर मेमोरियल यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक हट बनाई हुई है। यहाँ पे नाम जितने लोग हैं उनके नाम के पत्थर लगाए गए हैं जो भी सेक्रीफाइस किए हुए। ठीक है, ये सब देखो, ये सब पूरा बना है उधर। ये पीछे टाइगर हिल वगैरह है, पीछे जो तुम्हें नजर आएगा टाइगर हिल नजर आएगी। ये है, अगर ये यहाँ जब जाओगे ना तुम लोग, देखो इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आई डोंट नो, अच्छा मैं दिखा नहीं रहा हूँ, एक मिनट होल्ड, जस्ट गिव मी मोमेंट, लेट दिस कम। हाँ, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यू गाइस कैन सी दिस, ये जो नाम लिखे हुए यहाँ पे, Yes. यहाँ पे you will see the first name is of my regiment, which is called 224 medium regiment. 224 medium regiment, which has now got the latest guns which have come to us. So first name you will see here 224. So it's a great feeling that your regiment's name is there, and it is very, very motivating. You get a chance, you must visit. Okay, chalo, we are now back to our class. Yes. Right guys, so ये क्वेश्चन तो हो गया। अभी आज अर्नव ने मेरे को बोला था कि सर वो करा दो हमारा ग्रामर का एग्जाम। तो आई थिंक अगर हम लीनियर इक्वेशन को थोड़ा होल्ड कर लें, लीनियर इक्वेशन को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, कब है, व्हेन इज योर एग्जाम अर्नव? Sir, day after tomorrow. सर मेरा भी है सर, उसका डेट शीट और मेरी डेट शीट सेम है। तो तुम्हारा भी आ रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सर कल मैथ्स का एग्जाम है। ओके ऋत्विक, पहले बात मुझे एक बात बता, कोई डाउट है तो पूछ तो पहले, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैथ का पूरा चैप्टर तो जो मुझे के ख्याल से हमने यार काफी कुछ कवर कर लिया है। हालांकि तो आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो अभी पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे। आप ऋत्विक मेरे से पूछो, इफ देयर इज अ डाउट, पर्टिकुलर डाउट है कोई किसी कॉन्सेप्ट में या फिर क्वेश्चन में। 1 मिनट ऋत्विक से पूछ रहा हूँ, ऋत्विक चंदे। नो सर। नहीं, ओके ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट।
रात को भी कोई डाउट वाउट आएगा तो मेरे पास भेज देना, आई विल ट्राई टू सेंड यू अ सॉल्यूशन। Okay. राइट, वंश इज सेइंग समथिंग। वंश। सर मैं कह रहा था कि अर्णवा मेरी डेट शीट सेम है, मतलब ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब एग्रीमेंट कर ले, मैथ्स को थोड़ा सा ब्रेक दे देते, चैट बॉक्स में मेरे को ना यस और नो लिख के भेज दो भैया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रामर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ग्रामर। चलो ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे मेरा फेवरेट ये है, ग्रामर मेरी हमेशा मुझे अच्छा लगता है जब भी ग्रामर की तुम लोग बोलते हो। क्या है कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम ग्रामर को उतना टाइम दे नहीं पाते जितना देना चाहिए, जितना मैं चाहता हूँ देना, क्योंकि मैथ्स भी होता है और साइंस और चीजें होते हैं। ठीक है, आज करते हैं ग्रामर। लेट्स स्टार्ट गाइस। इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर एक्सेप्ट सम प्लेसेस। 2-3 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे तुम लोग बोलोगे सर यहाँ कंफ्यूजन हो गया। फॉर एक्सक्यूज एग्जाम्पल। मी सर। हाँ अर्णव। सर मेरे को ना एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट आया था। क्लास 8 है अपनी। नहीं नहीं, तेरा अभी एग्जाम मैथ्स का कब है? सर मैथ्स का तो हमारा मंडे को आई थिंक। तो कोई बात नहीं ना, पहले इंग्लिश ग्रामर कर लेते हैं, उसके बाद करा दूंगा इंग्लिश ग्रामर। एंड वी आर डूइंग सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स ना वर्ड यूज करते हैं कॉन्कॉर्ड। वर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो ना, तो आप अपनी अंग्रेजी ना दिखाएं और ना स्टूडेंट्स की अंग्रेजी इंप्रूव करने की कोशिश करें। आप स्टूडेंट्स को सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएं और जितना इजी बन सके ऐसे बना के पढ़ाएं। तो मैं कहूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ बेटर वर्ड। एग्रीमेंट इज अ बेटर वर्ड। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? इनका क्या कोई आपस में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, हाथ मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जफ्फी पा रहे हैं? लेट अस सी। I runs every day. You talks too much. He eat my sandwich. She do not sleep. I does not run. ये कोई सेंटेंसेस में कुछ गड़बड़ है क्या, या सही है लग रही सेंटेंस यार? एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा अनरेस्ट हो रखा है। एक नया स्टूडेंट हमारे पास है। भाई नाम बताओ यार दोस्त अपना। तुम यार, तू घबरा क्यों रहे हो? आई एम योर फ्रेंड। यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब थोड़ा फ्रेंडली मैटर रहता है। बलराम चक्रवर्ती। आपको मैं बलराम चक्रवर्ती तो नहीं बुला पाऊंगा। हाँ श्रिका। मुझे लगा ये कौन आ गया है। तू कहाँ से क्या क्या रूप लेके आती है बलराम चक्रवर्ती? सर मेरा फोन डिस्चार्ज था इसलिए मैंने इस फोन से किया है। ये चक्रवर्ती जी कौन है? सर मेरे पापा। उनके नाम में चक्रवर्ती लगता है? यस सर। पापा तो आप बता रहे थे बड़ौदा में। नहीं सर, वो बिहार। तो फोन उनका कैसे आ गया? तो तुम्हारे पास कैसे आ गया? नो सर, उस समय बड़ौदा में थे, अब इधर है। ओके चलो ठीक है। मैं क्या टेंशन हो रखी है, मैंने कहा कोई एक स्टूडेंट की मदर का फोन आया था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा मैं लिंक भेज दूं, आप ज्वाइन करा दें। चलो आई एम एड्रेस नाउ। ओके सो गाइस, समथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंसेस? यस सर। इज एनी वन ऑफ देम इज करेक्ट? इज एनी वन ऑफ देम करेक्ट? सिया? नो सर। नो सर। सारे गलत है। क्यों अर्णव, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जैसे घर में आपने भी देखा होगा, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, घर में पेरेंट्स, आपकी भी पेरेंट्स की भी लड़ाई होती है, मेरी वाइफ से बहुत बार लड़ाई हो जाती है। तो इनका क्या हो गया है? सब्जेक्ट और वर्ब में डिसएग्रीमेंट हो गया है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कहती है जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब होनी चाहिए, और उसने अपने को रूल बनाए हुए। उस रूल के अंदर सबसे पहले तो मैंने वो बार बार बताता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर उसके अंदर सिंगुलर, प्लूरल, ये बताता हूं मैं। आई फर्स्ट पर्सन होता है आई, इससे याद रहेगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल।
सिर्फ इसके अंदर एक ही खास बात है पूरी टेबल के अंदर, वो है शाहरुख खान पार्टी। ही, शी, इट, राम, सीता, गीता, इनको हमेशा मैं शाहरुख खान पार्टी बोलता हूँ। SR के शाहरुख खान पार्टी, क्योंकि शाहरुख खान की तरह ये लोग हमेशा अपने साथ एक सर्वेंट लेके चलते हैं, S। सो इफ आई से SRK acts well, if I say SRK acts well, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें S लग गया। SRK does not act well, फिर S लग गया। SRK is very famous, लग गया। SRK has not paid his income tax this year, S लग गया। SRK was criticized last year for his comments, again S लग गया। SRK, तो जहां पे भी थर्ड पर्सन आएगा अपने को S लगाना ही पड़ेगा। So this is the first principle of subject verb. This is clear to everyone because this is the major part. ये हो गया तो 40% अपना एक्सरसाइज पूरी होगी, चैप्टर पूरा हो गया। क्लियर? हाँ जी। Wherever you have third person and singular, थर्ड पर्सन होता है इसके बारे में बात हो रही होती है। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन है लिसनर, थर्ड पर्सन इसके बाद जो है नहीं यहाँ पे इसके बारे में बात होती है। फॉर एग्जांपल रामायणा इज अ ग्रेट एपिक, इज एस लगा, ठीक है। माय फ्रेंड वाज वेरी हैप्पी द डे ही गॉट मैरिड, एस वाज। माय अंकल हैज नॉट टेकन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, हैज, एस। ओके, so this is basically the 40% is over, ठीक। इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी हम आते हैं स्पेसिफिक चीजों पे, जैसे जैसे हम कवर करेंगे बताता रहूंगा तुम्हें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर सिंगुलर कब लगेगा, प्लूरल कवरेज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, युवराज मेहता। हाय, गुड इवनिंग युवराज। Okay, Yuvraj, you're in which school? Sir, he left. Say again, please. Sir, he left. He left. Acha, he left. Okay. Right, no problem. Right, guys, let's go ahead with our this thing. Subject verb agreement. Okay, good. I have got stuff on this. Sir, उसने फिर से rejoin कर लिया। ठीक है, okay. Yuvraj, I was asking you, you're in which school? कोई नहीं, I'll come to you. We are doing subject verb agreement, grammar कर रहे हैं हम लोग आज। Guys, just let me. Okay, ठीक है, ये वाले मिलते हैं, इसको पहले इसी को कर लेते हैं। Right. Okay. I'm sharing the notes. Just pay attention. We'll read one by one. Right. Arshia, can you start with you? Subject verb agreement. अच्छा, एक ना वर्ड आया इधर, एक फाइनाइट वर्ब। तुम लोगों को के साथ मैंने आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस किया था व्हेन यू वर इन 7th और दिस ईयर आई डोंट रिमेंबर। वर्ब्स आर टू टाइप, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब बता देता हूँ। वो फाइनाइट वर्ब जो है ना बहुत ही अच्छी फेयर वर्ब होती है। उसको पता है वर्ब का काम जो है एक्शन दिखाना है तो एक्शन ही दिखाती है। ऐसी सारी वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन कुछ बदमाश वर्ब होती हैं नॉन फाइनाइट। वो क्या करती है, वो एक वर्ब का काम नहीं करती, वो दुनिया भर का काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे, ये काम करती रहती है। उनको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। इसके अंदर हमारे आते पार्टिसिपल, जेरूंड एंड इंफिनिटिव्स। ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है। सिंपल भाषा में समझाऊं तुम्हें तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब लोग समझ गए। थर्ड पर्सन सिंगुलर विल बी स्पेशली यूज्ड। वीआईपी बंदा है, शाहरुख खान है, उसकी हर वर्ब के अंदर एस लगता है। जैसे एक्स, डज, इज, हैज, वाज, हर वर्ब के अंदर एस आएगा उसकी, बाकी में नहीं आता। यू आर गुड, आई एम गुड, ही इज गुड, एस लगेगा थर्ड पर्सन। ओके, ये भी पॉइंट नोट कर लो, याद रहेगा। फाइनाइट वर्ब वो होती है, फाइनाइट मतलब
फेथफुल वर्ड, F फॉर फाइनाइट, F फॉर फेथफुल। ये वही काम करती है जिनके लिए इनको बनाया गया है, सिर्फ वर्ब है और वर्ब का काम करेंगे। ऐसी वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है ये पार्ट, बट स्टिल आई थिंक आई शुड टेल यू। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो। ओके ठीक है। फाइनाइट वर्ब, verbs which act as verb only। F मतलब फेथफुल है, याद रखने के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक है। फेथफुल है, जो काम दिया गया वही करती हैं, इसलिए उनको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एक ट्रिक है याद रखने के लिए। ओके अर्षा, काइंडली स्टार्ट। पॉइंट ए। Yes, sir. A finite verb must agree with a subject in number and person. For example, the girl is dancing. The girl are dancing. Subject and verb agrees in a number. Yeah. I am proud of being an Indian. He is proud of being an Indian. You are proud of being an Indian. Okay, तो subject and देखो एक मिनट, खाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीइंग पर्सन। नाउ सी एस जो आया वर्ब के अंदर वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगल के लिए आया। थर्ड पर्सन सिंगल, प्लूरल भी नहीं, थर्ड पर्सन सिंगल। ये याद रखने वाली बात है। इसको एक ये तो बुक्स में तो कह रहा 50 तरीके से बताया जाता है। मेरा एक छोटा गुरु मंत्र यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो शाहरुख खान पार्टी है वो हमेशा अपने साथ एक सर्वेंट लेके चलते हैं एस। जो उनकी वर्ब होती है उसमें वो एस पक्का होगा, चाहे वो इज हो, चाहे वो वॉज हो, चाहे हैज है, डज है, रन्स, ईट्स, डज नॉट, डज ही, सब में ऐसा आएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके, एक बार पढ़ना अर्षा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। The error of proximity. Very often the subject and its verb are separated by a long phrase or even a clause. In such cases, we have to take care that the verb agrees with its actual subject and not the noun or pronoun placed close to it. Okay, I'll take this example only. I'll take these examples only, something like this. Let's just check it कि गलतियां कहाँ हो सकती है और कैसे हमें उससे दूर रहना है। So they give an example. कहाँ हमें, where you have to be careful. See, Vansh, the apples in this basket. Abhinav? Yes, sir. In this, so far in this sentence, what is the subject? Sir, can you read the sentence? The apples in this basket. What is the subject? Sir, apples. Yes. Apples is singular or plural? Singular होता है single, एक. Plural होता है more than one. Sir, plural है. Plural. अच्छा, कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है, कोई बच्चा सोचता है यहाँ पे लिखा दिस बास्केट, और बास्केट तो सिंगल रखी हुई है, तो बोलेगा सर ने बताया था कि सिंगुलर के साथ तो इज लगाएगा, तो मैं लिख देता हूँ एप्पल्स इन दिस बास्केट इज बैड और रोटन, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, रोटन यू वांट टू राइट रोटन, राइट। बट ये गलत है, क्योंकि बास्केट सब्जेक्ट नहीं है, असली सब्जेक्ट तो ये है भाई साहब, एप्पल्स। एप्पल्स इन दिस बास्केट आर रोटन। ओके, आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी मेजर पॉइंट, सब लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ गाइस, क्लियर है? ओके, अर्षा प्लीज कंप्लीट दिस थिंग, या कंप्लीट दिस सेकंड सेंटेंस, द स्ट्रॉन्ग, या Yes, sir. The apples in the basket are delicious. The strong bond of affection between the two cousins was obvious. The joy is one. अब देखो, बाद में two cousins आया है, it's a plural, but our main subject is the bond between the two friends. The strong bond singular है। हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें वर्ब लगाना। Please read the third one.
The joys one experiences in one's childhood are beyond the description. ओके ये ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर। ऑल राइट, सिया आप पढ़ो, काफी टाइम हो गया सिया को मैंने पढ़ाए हुए। Yes, sir. In the introductory there, when a sentence begins with there, the verb agrees with the real subject that follows there. There is no proof that there is no proof of his involvement in the in this case. Okay, there now are major flaws in your argument. Okay, there are major flaws in your argument. बच्चे देखो, there किसको फर्स्ट सेंटेंस बोला, there is no proof, तो there किसको रेफर कर रहा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, no proof, proofs नहीं लिखा, proof, so there is no major proof of his involvement in this case. Second sentence में there are major flaws in your argument, there are major problems with your plan, तो major problems, major flaws are लगेगा, ये सब्जेक्ट लगेगा। What happens when two or more nouns or pronouns are joined by? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मेरे को बड़ा अच्छा भी लगता है। ये मैं बता देता हूँ अभी, और इसके अंदर एक बहुत अच्छा आता है वर्ड में होता हूँ। चल फर्स्ट एक्सरसाइज भी दे दी थी जल्दी। ऑल सो all right, stop. Okay, right guys, now let's go ahead. So this is a case when there are more than one subject, and there are more than one subjects. तो नेचुरल सी बात है यार, मोर देन वन मतलब प्लूरल, तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वाली वर्ब आएगी, यानी कि वर्ब जाएगी प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई फ्रेंड आर गुड एट बॉक्सिंग। सिंस मोर देन वन सब्जेक्ट है भाई, तो वर्ब जो है प्लूरल आएगी, बट कई बार नहीं आएगी। देखते हैं कैसे। ये यार डिस्कस तो किया था हमने एक बार, मैंने अजय देवगन का एग्जांपल दिया तुम लोगों को। ओके, देखो बहुत बार आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर शाहरुख खान प्रोड्यूसर भी, पता है ना तुम्हें, SRK फिल्म करके उसकी कंपनी है। हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस? हाउ मेनी एक्टर्स हैव द फिल्म व्हाट डू यू कॉल प्रोडक्शन हाउसेस? अजय देवगन हैज अजय देवगन फिल्म्स, सलमान खान है सलमान खान फिल्म्स, शाहरुख खान हैज SRK फिल्म्स। कई सारे एक्टर हैं जिनके की अपने खुद के प्रोडक्शन हाउसेज है, वो प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। सो द एक्टर एंड प्रोड्यूसर SRK हैज अराइव्ड। अब तुम बोलोगे कि सर आपने हैज क्यों लिखा, यहाँ तो एक एक्टर भी है एक प्रोड्यूसर भी है, दो लोग हैं, तो आपने हैज क्यों लिखा? भाई जब बात करता है द एक्टर एंड प्रोड्यूसर SRK, एक बंदे की बात हो रही है। बट नाउ सी, आई विल गिव यू डिफरेंट सीन नाउ। थोड़ा ये नीचे जा रहा है, अरे भाई कहाँ गया युवराज मेहता? यस सर। ओ भाई कुछ तो बोलो, कौन से स्कूल में हो अभी आप? सर GD गोयनका। बेटा अपने यहाँ ना थोड़ा क्लास में मस्ती भी चलती है और हम लोग पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत सीरियसली, ठीक है? सो रिलैक्स होके पढ़ना है बिल्कुल। और ये वीडियोस रोजाना अपलोड होते हैं क्लास में, क्लास के बाद अगले दिन। सो जब कोई डाउट रह जाए तो वीडियो को देखना। नोट्स, ये सारे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है अभी क्लास में, ये क्लास के बाद आपके पास आ जाएंगे। आई टेक ए पिक्चर ऑफ दिस एंड सेंड इट टू यू आफ्टर क्लास, ठीक है? आई ऐड यू इन द ग्रुप, उसके बाद ये आपके पास आते रहेंगे। आपका काम है सिर्फ 100% अटेंशन दे देना, बस 100% अटेंशन दे दो, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। ओके ओके। आपके कोई एग्जाम तो नहीं इमीडिएटली, टेस्ट मतलब टेस्ट तो नहीं आ रहे कोई इमीडिएटली? सर नहीं सर, अभी चल रहे हैं। अभी वो नेक्स्ट टेस्ट क्या है आपका?
Sir, English. When is it? Sir, tomorrow. Okay. Is subject verb agreement there? ग्रामर में है? Yes, sir. ओके चलो, तो तुम्हारा फायदा हो गया। अब दोस्तों देखना, मैंने इसको मिटाया नहीं नीचे वाले को, अब मैं इसको दूसरी तरह से लिख रहा हूं, और मैं चाहूंगा सभी लोग मुझे बताएं कि सर आपने गलत लिखा है कि सही लिखा है। देखो, और मैं तुम्हें पता है जानबूझ के मैं गलत भी लिखता हूँ, कई बार सही भी लिखता हूँ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर has arrived. Right or wrong? Shia? Sir, right. Sir, wrong. Okay, Jia says right. Okay, चलो सब लोग अपना एक काम करो, चैट बॉक्स में अपना give me your opinion. What do you think about the sentence that I have written? Have I written a right sentence or have I written a wrong sentence? Some people are saying right, some people are saying wrong. भाई सब लोग बताओ मेरे को. I want आंसर फ्रॉम. ओके ठीक है, सबसे मेरे को चाहिए आंसर. शिव का भी आ गया. उमर ऐसा कोई है जो क्लास में नहीं है आज? सब लोग हैं? ऋत्विक तुम बताओ यार मेरे को. सब मैं. हाँ एक बार चेक करके बताएगा कौन कोई नहीं है क्लास में. हाँ राइट गाइस. So ये द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर है या फिर एक्टर है बस? द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड. नहीं मैं आपको तो मैं कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था. मैं कह रहा था क्लास में सब लोग हैं, एक बार नजर मार ले भाई लोग. कोई मिसिंग तो नहीं है? मेरे को चेक करते हैं. सर मुझे तो नहीं लग रहा कोई एब्सेंट है. सभी है मेरे ख्याल से. अभिनव भी है, उमर भी है, शिव भी है, सब लोग है. ठीक, ओके राइट गाइस. नाउ यू सी यहां पे लिखा है द एक्टर एंड प्रोड्यूसर. यहां द नहीं है, यहां द नहीं है, यहां द है. इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग है भाई. दे डिफरेंट पीपल. एक्टर अलग है, ये अलग है. सो दीज आर डिफरेंट पीपल. सो व्हेन वी हैव डिफरेंट पीपल दैट मींस सब्जेक्ट इज मोर देन वन, प्लूरल है. तो ये आएगा हैव. एक्चुअली सेंटेंस कैसे बनेगा? द एक्टर शाहरुख खान एंड द प्रोड्यूसर. क्या नाम है उस प्रोड्यूसर का, वो जो बाकी लोगों के इंटरव्यू करता रहता है, यंग सा बंदा. करण जौहर. So the actor SRK Shahrukh Khan and the producer Karan Johar have right. Remember, if there are two the, then you have to take it as a plural. And if there is only one, जैसे कोहली था, विराट कोहली अपना शुरू में कीपिंग करता था. अब तो ये पंत आ गए, शाह वगैरह आ गए. शुरू में विराट कोहली कीपर था, कीपर और बैट्समैन था. तो तब क्या बोलते थे? द बैट्समैन एंड द कीपर, द बैट्समैन एंड कीपर विराट कोहली. एक एक ही बार लगता था बस. अगर आप बोलो द बैट्समैन एंड द कीपर आर आर्ग्यूइंग विद द एम्पायर, दैट मींस देयर आर टू पीपल डिफरेंट. ओके नाउ लेट्स गो अहेड. यस ओके. सो ये हो गया. या इसी चीज को अब हम पढ़ लेते हैं. मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. Let's start. Sia, kindly read. Two or more nouns or pronouns joined by and. Two or more nouns or pronouns joined by and. A. Subject consists of two or more nouns or pronouns joined by and. Plural verb. Intelligent planning and hard work are both equally necessary for success. He and I were given the responsibility of managing the stage. Yeah, okay. एक मिनट जस्ट मेरे को होल्ड कर. मैं कुछ छुपाना चाह रहा हूँ तुम लोगों से. मैं कुछ छुपाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पहले वो. हाँ बताओ. ओके
द नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन। अगर अब दूसरा केस क्या है, सेकंड केस के अंदर है कि नाउन एक ही बंदे का नाम आ रहा है। हाँ, Yes, sir. The nouns refer to the same person or thing, singular verb. The director and the producer of the movie was present there. there. Okay, now one more Rice thing, and curry is one more his thing. favorite अरे dish. रुक जा, जानबूझ के मैं थोड़ा छुपाया हुआ हूँ। सुनो दोस्तों, बहुत बार डिशेस के मामले में ऐसा होता है, डिशेस के मामले में होता है, जैसे मैं कई बार होता दाल, राइस। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, ओके, ठीक है, आई विल ट्राई टू बी डेलिबरेट। दाल राइस इज माय फेवरेट डिश। एक्चुअली दाल राइस नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं दाल एंड राइस। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था। अब तुम्हें लग रहा हो कि सही कह रहे हो सर आप, दाल एंड राइस, हालांकि दो सब्जेक्ट है, बट इट मीन्स ओनली वन डिश, इट मीन्स ओनली वन डिश। ठीक है। और जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिशेज ऐसी होती है जो इकट्ठी खाई जाती है। ठीक है, इडली डोसा। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हो रही है? Yes. Okay. Just let me check what's the problem. Idli dosa is my favorite. Let me check what is the problem. And what about the video? Is the video good? The video is okay? Yes, sir, it is okay. Yes, sir. Okay, let us try a little bit more. If there's a problem with audio, I'll leave the class and rejoin. Okay, so if you are talking about a dish that can have 1, 2 or even three ingredients, so you say chole puri rice, chole comma puri and rice is my favorite dish. So when you say favorite dish, then it is singular. लेकिन सर अभी भी थोड़ी सी क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है। Okay, I'll leave this thing and rejoin. You guys stay put here. Stay put here. Okay, I hope there is some improvement. Otherwise, I'll have to send a different link. Okay. Yes, sir. Okay. So, but if I say now it is all depends upon your this thing. Ritvik, तुम बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा, हम सिंगुलर लगाएंगे। देखो अभी तुम्हारे पास fill in the blanks आया and they are asked you to subject put a verb. अभी अभिनव, आदित्य, ध्यान दो तुम लोगों को जिनका एग्जाम है, खासकर स्पेशली युवराज, ऐसा आया, देखो दाल कॉमा राइस एंड आइसक्रीम डैश माय फेवरेट डिश। अगर तो डिश लिखा उस बंदे ने तो तुम इज लगा दो, और उसने अगर लिखा है ऐसे आपको इडली कॉमा सांभर एंड नूडल्स डैश माय फेवरेट डिशेस, तो क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि वहां डिशेस लिखा, उसने खुद ही लिखा उस बंदे ने। तो तुम्हारी नजर रहनी चाहिए सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में। सबसे अच्छे बंदे वो लोग करते हैं जिनकी नजर रहती है, यार ये क्वेश्चन वाले ने क्या कमिट किया है, एकदम से मिल जाएगा। ठीक, ऑलराइट, थोड़ा सी हम प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। सिंस यू हैव एग्जाम डे आफ्टर ना, और नो अभी नो डे आफ्टर है। Yes, sir. Okay, Yuvraj, when is your exam? When is your test? Sir, what? When is your test of English? Tomorrow or day after? Sir, tomorrow. Okay, चल ठीक है। I think I'll just cover the major parts here so that you can benefit from this. Right. Okay. Siya ने पढ़ लिया। Let Shrika read now. Shrika, can you read from here? Rice and curry. Okay, sir. Rice and curry is his favorite dish. तो अगेन राइस एंड करी को डिश बोला ना, डिश तो इज लिखा। अगर सपोज करो वो ये बोल देता राइस एंड करी इज डैश हिज फेवरेट डिशेस,
तो हम खुद से आर लगा देते, थोड़ा बहुत तो हमारी समझदारी रहेगी। बट फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में क्या होता है, वी हैव टू सी व्हाट द क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट द एग्जामिनर हैज डन, व्हाट द पेपर सेटर हैज डन, उसको भी देखना पड़ता है। हाँ, अगर इफ आई एम मेकिंग अ सेंटेंस ऑन माय ओन, आई एम टॉकिंग माय फ्रेंड एंड देन आई एम सेइंग यार दाल एंड करी is my favorite dish, that I am at liberty to use that, I will say that. बट एग्जाम के अंदर खासकर वो भी ध्यान रखनी है कि सर ने ऐसा बताया था, लेकिन इस बंदे ने डिशेज तो नहीं लिख दिया कहीं। अगर उसने डिशेज लिख दिया अर्णव, अभिनव, युवराज, तो आपने भाई एस वहां पे प्लूरल लगाना पड़ेगा अगर डिशेज लिख दिया उसने। ओके, प्रोड्यूसर राइटर तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। ये सिमिलरली ये जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक ही बार द आया, द ऑनर एंड रिस्पेक्ट of the countrymen means maximum to the soldier. तो honor and the respect means वाला singular बना दिया, singular. Honor and respect of the countrymen means singular. तो honor and the respect only come to those who deserve. देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, honor, this is a sentence number 5. Honor and respect only कम्स नहीं लिखूंगा, कम लिखूंगा, कम, प्लूरल है। क्यों? अलग अलग यूज हो रहा है, अलग अलग यूज हो रहा है। ऑनर रिस्पेक्ट ओनली कम टू दोज हु डिजर्व। और अगर आता दी ऑनर एंड रेस्पेक्ट ऑफ हिज कंट्रीमैन, मीन्स आएगा अभी, मीन्स सिंगुलर, a lot to me। तो द लगा के अगर उनको इकट्ठा बंडल कर दिया तो मीन्स आएगा, और अलग अलग रखा तो आई नो इट in one class it becomes too much to absorb, but I will be sending the notes, just मैं ना नोट्स एक मिनट शेयर कर ही रहा हूँ ग्रुप में। Yuvraj, you're not in the group right now, I'll add you, okay, after the class. Okay, sir. Okay, एक मिनट, just give me a moment. Yes, 8th. Okay. I'm doing this because I tend to forget because of next class. Subject verb agreement. Okay. Okay, posted in revision group. All right. Yeah. Okay. Who was reading? Sia was reading? Sir, I was reading. Shrika, Sir, Shrika was reading. Shrika, please read. Please read. This one, D part. The noun expresses single idea. The nouns express a single idea. Singular verb. The sum and substance of the poem is given below. Making a promise and not honoring it is against my principles. Okay, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को इसका। ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली फ्रेजेस होते हैं जिनको हम सिंगुलर यूज करते हैं। सिंगल फ्रेज, यार फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। नॉट रेस्पेक्टिंग योर कंट्रीज फ्लैग, अब देखो सब्जेक्ट बन गया, दिस इज सब्जेक्ट। नॉट रेस्पेक्टिंग योर कंट्रीज फ्लैग इज अ बैड थिंग, इज अ बैड थिंग, तो सिंगुलर बन गया। और क्या हो सकता है? यू हैव टू गेट अ सेंस कि भाई ये जो आइडिया है ये सिंगुलर प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल, आफ्टर आई बिकेम मैन ऑफ द मैच a lot of money was given to me। अब तुम बोलोगे सर लॉट ऑफ मनी तो प्लूरल होना चाहिए, बहुत सारे नोट मिले होंगे इस बंदे को, बट वो नोट्स की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा लॉट ऑफ मनी was given to me।
और अगर इसी चीज को दूसरी तरह लिखो, आफ्टर बिकमिंग मैन ऑफ द मैच, लॉट्स ऑफ नोट्स ऑफ हाई denominations और lots of notes of various currencies were given to me. Now ये प्लूरल हो गया. बात को कहने का तरीका है. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर ना ये बिल्कुल मैथ वाले फॉर्मूले नहीं चलते. इट कम्स टू यू बाय प्रैक्टिस, बाय एंड बाय इट कम्स. ओके, हमारे पास टाइम है भी थोड़ा सा कम. आई वांट समबडी हु कैन रीड फास्ट. अभिनव, आर यू अप टू इट? वंश एंड अभिनव. Yes, sir, I can. Okay, right. First chance, Vansh. Vansh spoke first. Vansh, I'm presenting. Just let's go quickly over to the next part. Yuvraj, you also be ready. I'll give a chance to you to read. All right. Okay, guys. So you can see there's an exercise here. The notes I have sent it to you. Please do it. Now I'm talking about next is as well as with not only but also. इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? Depend करता है. As well as के अंदर क्या होता है? हमेशा जनरली एक सिंगुलर होता है. लेकिन जैसे दो सिंगुलर है, माई फ्रेंड अर्नव एंड माई ब्रदर राहुल, तो प्लूरल हो गया, आर गोइंग फॉर अ पार्टी. बट इफ आई से माई फ्रेंड अर्नव एज वेल एज माई ब्रदर राहुल इज गोइंग, तो उसमें क्या होगा? सिंगुलर. ऑलराइट. तो इसके अंदर क्या होता है कि पहला वाला जो वर्ब है, पहला वाला जो आपका सब्जेक्ट है, उसको कंसीडर किया जाता है. उसी के हिसाब से वर्ब. एज वेल एज को समझो कि साइड है वो, उसके कोई खास वैल्यू नहीं. पढ़ लेते हैं, डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, टाइम थोड़ा सा कम है. वंस प्लीज रीड पॉइंट नंबर ई. As well as, with, not only, but also. Subject consists of two noun or pronouns joined with as well as or with. और यहाँ देखो क्या ये ना ये पढ़ना, ये राइट वाला, ये मेन चीज तो ये है. वर्ब एग्रीज विद द, Verb agrees with the first subject. फर्स्ट सब्जेक्ट. आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है कि वर्ब उसके हिसाब से लगाऊंगा मैं. हाँ, नाउ सी. Mr. Das as well as his friend has escaped unhurt. You as well as I are responsible for our losses. तो यहाँ यू के हिसाब से लगाया. नेक्स्ट में देखो, I as well as you am responsible for our losses. तुम बोलोगे सर ये यू भी तो लगा ना भाई, सबसे पहले आई लगा हुआ है, आई है मेन सब्जेक्ट, उसके हिसाब से लगेगा. या The captain with other members of the team was given a hearty welcome. हार्टी वेलकम. ओके, नाउ दोस्तों क्या होता है, दो एग्जांपल बताता हूँ मैं. यार ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, हर बार मैं ये एग्जांपल इस वाले से देता हूँ क्योंकि याद जल्दी से यही आता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी and 5 cabinet ministers dash gone to Mussoorie today. Has आएगा, have आएगा. Prime Minister Modi and 5 cabinet ministers dash has आएगा, have आएगा, gone to Mussoorie today. Prime Minister Modi and 5 cabinet ministers dash gone have आएगा. पता है have क्यों आएगा? क्योंकि मोर देन वन सब्जेक्ट हो गए, एंड लग गया, बीच एंड लग गया. नाउ सी द अदर वन. प्राइम मिनिस्टर मोदी along with 5 cabinet ministers dash gone to Mussoorie today. has. इसमें हैज आएगा. मेन सब्जेक्ट मोदी है, along with चले गए, प्राइम मिनिस्टर उनको छोड़ दो, उनका मेन एक्शन नहीं, मोदी गया. या Prime Minister Modi as well as 5 cabinet ministers. अच्छा, इसमें क्या होगा? Prime Minister Modi as well as 5 cabinet ministers have gone. नहीं, इसको मत, अच्छा इसको डिसरिगार्ड कर दो, ये तुम्हें कंफ्यूज कर देगा कि इसके अंदर have आएगा. बस इतना याद रखो कि along with अगर आएगा तो हमें मेन सब्जेक्ट को लेके चलना है. ओके, बहुत कम टाइम बचा है. ओके गाइस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू. मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा, बट मैं थोड़ा सा कुछ काम की चीज बताता हूँ. अच्छा, ईदर और नीदर नोर के अंदर सिंगुलर आता है, अनलेस कि सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल हो. सो ईदर यू और योर फ्रेंड हैज टेकन माय मनी, आइदर यू और योर फ्रेंड्स हैव स्टोलन माय बुक. तो अगर सेकंड वाला प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी.
देखो वन सब्जेक्ट अदर प्लूरल, either he or his parents are going, यानी दोनों में से एक भी प्लूरल हो तो प्लूरल होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं either, neither, each, everyone, no one, someone, ये सब सिंगुलर होते हैं। someone has taken my money, no one has taken your money, neither has taken my money। लेकिन या फिर neither कई बार ऐसा था, neither of you is guilty, सिंगुलर वर्ब है। एक्चुअली ये बड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन ये तुम लोग पढ़ लें। मच मोर लिटिल इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। मैंने ये छोड़ी। एक्चुअली ये बुक जो मैंने तुम लोगों से शेयर किया है ना, ये बुक काफी अच्छे लेवल की है। 9th का जो मैं अध्ययन देखता हूँ वो इससे कहीं नीचे ही है। सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा इज यूज होता है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, अकाउंट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इनके लिए सिंगुलर आता है। नाउन सिंगुलर भाई पढ़ लेना, ये बहुत लंबा मैटर है। कलेक्टिव नाउन को भी हमेशा सिंगुलर माना जाता है। द कमेटी was very adamant on giving him punishment. The court में हो सकता है एक से ज्यादा जज हो तभी। The court has decided, ऐसा होगा। चलो let me call it off now, बहुत लंबा है, अभी टाइम अपने पास है नहीं। Let me just जाने से पहले तुम लोगों से पूछ लूं भाई, कुछ पल्ले पड़ी बात के नहीं, कुछ तो समझ में आया कि नहीं, मतलब कुछ मोटा मोटा पकड़ में आया कि नहीं? हाँ यस और नो करो चैट बॉक्स में। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो पूछो। मेरी अगली क्लास है, बट आई स्टिल विल लाइक टू गिव यू 2 minutes। नो डाउट्स? ओके। युवराज, आई एम सेंडिंग यू द नोट्स, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। ओके, अभी मैंने भेज दिया आपके मामा वाले नंबर पे। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। कल खासकर युवराज तुम्हारा कल टेस्ट है, बाकी का तो परसों है। तो कल फिर एक काम करेंगे, कल मैं अच्छे से एफर्ट लगा के अच्छे से तुम्हें पूरा चैप्टर कराऊंगा, देन आई विल गिव यू एक्सरसाइज आल्सो बेस्ड ऑन दिस। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुड बिकम वेरी क्लियर टू यू। 9th और 10th भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इतने बढ़िया नोट्स हैं, नोट्स थोड़ा सा एडवांस नोट्स हैं। चलो, सी यू गाइस, सी यू टुमारो। गुड नाइट एवरीवन। युवराज, अभिनव, वंश, ऋत्विक, उमर, शिव, बाय बाय गाइस। Bye sir. Good night sir. बाय बाय।